नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, कार्यशाला का आयोजन। संत पाल पब्लिक स्कूल तेघड़ा में सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रस्तावित बच्चों के लिए एक कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसका विषय था बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम में जल संरक्षण कैसे किया जाता है और क्यों। जल संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पानी को स्वच्छ और शुद्ध रखता है और पर्यावरण को संरक्षित करता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी की आपूर्ति अंतहीन नहीं है। पृथ्वी का लगभग 2% ताज़ा पानी ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों में बंद है, जबकि 97% खारा पानी है। अतः पृथ्वी पर केवल 1% जल ही पीने के लिए उपलब्ध है। जल संरक्षण में जल प्रदूषण से बचना शामिल है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में पृथ्वी के अपशिष्ट जल का लगभग 10% ही उचित रूप से निपटारा किया जाता है। इसके अलावा जल संरक्षण से पैसे की बचत होती है, पानी की कमी के प्रभाव कम होते हैं और यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो। जल संरक्षण में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों में बर्बादी को कम करना, पानी की गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को रोकना और जल प्रबंधन की प्रथाओं में सुधार करना शामिल है। घरेलू जल संरक्षण पहल जैसे कम फ्लश वाले शौचालयों का उपयोग, वर्षा जल संचयन और कम प्रवाह वाले नल का उपयोग की सिफारिश की जाती है। Hello everyone. My name is Raunak Raj. I read in class 8 to St. Paul Public School. Today I am described to conserving of water in Bihar. First of all, sprinkler system. It is in perpendicular having the system that rotating nozzles on the top to the through the main pipes. Under high pressure to the help of pump. It is an uneven, dark and loamy soil. Second, drip system. It is a system the waterfall drops in the position of the roots. It is a best technique of conserving of water. Thank you. I request my friend Sudhanshu to some topics to Mizoram. Hello, myself Sudhanshu Kumar. I study in class 8 in St. Paul Public School. I am going to discuss about how water is conserved in Mizoram. We all know that water is very essential for all living beings. In Mizoram, they use indigenous systems of water conserving in rainwaters. It's known as Jabo or Ruja system. In these systems, rainwater is collected and stored in the catchments along the mountain slopes for using irrigation and other purposes. The rainwater harvesting is one of the most effective methods of water management and water conservation. In these systems, combine water conservations like forestry, agriculture and animals care. Water is used for drinking, washing, cooking and many other uses of waters. Save water, save life. Thank you. Have a nice day. I would like to invite my friend Shivam Kumar. Hi, I am Shivam Kumar. I am studying in class 8. In St. Paul Public School. I am going to describe about Tripura. Hi, I am Shivam Kumar. I am studying in class 8 in St. Paul Public School. I am going to describe about Tripura. We know water conservation is an essential practice in today's world, as water scarcity is becoming a problem in many parts of the world. Parent state institutions like Tripura, where practice based water conservation like rainwater harvesting. In this system, they capture the rainwater and store it, and then collected rainwater used in agriculture and domestic purpose. Second, promotion of drip irrigation. Drip irrigation is being promoted in this state as an essential practice method of irrigation to conserve water and improve crop yield. Third, watershed development have been implemented in this state to promote soil and water consumption practice through afforestation, court building and other measures. Fourth, promotion of water efficient crops.
crops that require less water, such as millets, pulse, and oil seeds, are required in this state to reduce water consumption in agriculture. Thank you. उद्योग अनुप्रयोग जैसे जल पुनर्चक्रण प्रणाली और जल रहित कार वाश का उपयोग भी पानी का संरक्षण करते हैं। इस कार्यशाला में 45 बच्चे भाग लिए, जिनमें कौशिक मधुमाला, अर्पित राज, ब्यूटी कुमारी, देवदक्ष, खुशी कुमारी, हुमना अली, आयशा कुमारी, रिया कुमारी आदि। साथ ही ने दिशा निर्देश देने वाले शिक्षकों में भीम कुमार, सौरभ कुमार एवं रिंपू कुमार शामिल थे। संरक्षण क्यों अनिवार्य है? जी हाँ, धन्यवाद। जल संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी को स्वच्छ और शुद्ध रखता है और पर्यावरण को संरक्षित रखता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी की आपूर्ति अंतहीन नहीं है। पृथ्वी का लगभग 2% ताज़ा पानी ग्लेशियरों और बर्फ़ की चोटियों में बंद है, जबकि 97% खारा पानी है। अतः पृथ्वी पर केवल 1% जल ही पीने के लिए उपलब्ध है। जल संरक्षण में जल प्रदूषण से बचना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में पृथ्वी के अपशिष्ट जल का लगभग 10% ही उचित रूप से निपटान किया जाता है। इसके अलावा जल संरक्षण से पैसे की बचत होती है, पानी के कमी के प्रभाव कम होते हैं और यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सके। जल संरक्षण में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों में बर्बादी को कम करना, पानी की गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को रोकना, जल प्रबंधन की प्रथाओं और बर्बादी को रोकना शामिल है। इस पानी की गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को रोकना और जल प्रबंधन की प्रथाओं को सुधार करना शामिल है। घरेलू जल संरक्षण पहल जैसे कम फ्लश वाले शौचालयों का उपयोग करना, वर्षा जल का संचयन करना, कम प्रवाह वाले नल का प्रयोग करना आदि सिफारिश की जाती है। उद्योग अनुप्रयोग, जल पुनर्चक्रण प्रणाली और जल रहित कार वाश का उपयोग करना पानी का संरक्षण का एक हिस्सा साबित हो सकता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल संरक्षण अनिवार्य है। धन्यवाद। बेगूसराय के तिघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।